آج اماں میری شادی کر رہی تھی۔ یوں ہی مجھے رخصت کیا تو اماں میرے کان میں بولی، پتی کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا۔ یہ سن کر میں آنسو بہاتے ہوئے سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے پتی آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جیسے ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو میری چیخ نکل گئی۔ میرا نام مریم ہے۔ شاید اس دنیا کی بدصورت لڑکی تھی جس نے اپنا چہرہ کبھی آئینے میں نہیں دیکھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اماں مجھے آئینہ دیکھنے نہیں دیتی۔ وہ تو مجھے کہیں جانے آنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی سے ملنے دیتی۔ انہوں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی اور بول رکھا تھا کہ اگر تو نے آئینہ دیکھا تو تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ وہ مجھے ہر کسی سے چھپا کر رکھتی اور پھر میں نے اپنی بہت خواہشوں کو دباتے ہوئے میں نے اپنی صورت نہیں دیکھی۔ اماں تو مجھے کہتی تھی کہ تم تو بہت خوبصورت ہو اور پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو کہیں مت جانا ورنہ تجھے نظر لگ جائے گی، اور کبھی کہتی تو اچھی نہیں دکھتی اس لیے خود کو چھپا کر رکھو۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں سوچ میں تھی کہ اماں کی کون سی بات پر یقین کروں۔ آخر میں کیا کرتی؟ اماں کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، کیونکہ اماں کے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اس گھر کے سارے شیشے توڑ دیے، کہیں میں آئینے میں خود کو دیکھ نہ لوں۔ اسی وجہ سے میں اسکول میں بھی نقاب پہن کر جاتی، صرف آنکھیں ہی نظر آتی۔ میں گھر میں بنا نقاب کر گھومتی۔ جب میں چھوٹی تھی تب سب میری تعریف کرتے تھے کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن جب سے اماں نے میری نقاب بندی لگائی میں ساری باتیں بھول گئی۔ لیکن جب بھی میں کھڑکی پر کھڑی ہوتی تو نیچے سڑک پر آنے جانے لوگوں کو دیکھتی تو وہ لوگ مڑ مڑ کر مجھے حیرانی والی نظروں سے دیکھتے۔ کبھی کبھی یہ باتیں میرے دماغ میں گھومتی جاتی اور میں ان باتوں کو توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی، وہ بھی آتے جاتے مجھے دیکھتا۔ ایک دن گھر میں سبزی ختم تھی، اماں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے سبزی والے کی آواز آئی تو وہی خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا اور پوچھنے لگا، سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، میں نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اماں بھی گھر پر نہیں تھی۔ وہ بولا، جو بھی لینا ہے لے لو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو یہاں سے گزرتا رہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ آدھا کلو ٹماٹر دے دو، میں تمہیں اس کے پیسے کل دے دوں گی۔ اس نے مجھے خاموشی سے سبزی پکڑوا دی اور تھیلا دیتے ہوئے میرے ہاتھ کو ٹچ کرنے لگا اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کر اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں جب گھر آئیں تو میں نے ان کو بتا دیا کہ آج میں نے سبزی والے سے سبزی ادھار لی ہے، پیسے دے دو، میں کل اس کو دے دوں گی۔ اماں سے پیسے لے کر میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور صبح اس کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی ہوئی دروازہ کھول کر آگے پیسے بڑھا دیے۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے پیسے لے گیا۔ میں فوراً اندر چلی گئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک اپنگ بھی گزر رہا تھا جو اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے دہشت ہونے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی والے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں ہر روز اس سے سبزی لیا کرتی اور وہ سبزی لینے کے بہانے میرا ہاتھ چھو لیتا۔ اب تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتا تھا، میں اسے زبردستی پیسے دے دیا کرتی اور کبھی کبھی وہ مجھے مفت میں بھی سبزی پکڑوا دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے سبزی دیتے ہوئے اس نے ایک خط دے دیا اور میں نے وہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اندر آ کر میں نے وہ چھپا دیا۔ رات کو جب اماں گہری نیند میں سو گئیں میں نے وہ خط نکال کر پڑھا جس میں پٹھان نے اس میں اپنا نام بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ مجھ سے خط کا جواب بھی مانگ رہا تھا۔ میں اس وقت کاغذ اور قلم اٹھا کر خط کا جواب لکھنا شروع کیا اور میں نے کہا، میرا نام مریم ہے، مجھے تم بھی بہت اچھے لگتے ہو اور مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھنے کے بعد میں نے خط کو چھپا دیا تاکہ اماں دیکھ نہ لیں اور میں بستر پر لیٹ کر پٹھان کے بارے میں سوچتے سوچتے چادر کھینچ کر سونے لگی۔ اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ میں نے سبزی والے کی آواز سنی۔
दिल की तेज़ धड़कन को सुनते हुए मैं खत लेकर बाहर आ गई और उसने मेरी तरफ सब्जी बढ़ाई। मैंने उसे खत दे दिया और इसी वक्त मुझे अपंग बाबा आता हुआ दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके घर आ गई और किचन में सब्जी रखी और आधी सब्जी निकाल कर काटने लगी और सोचने लगी, अगर मैं बदसूरत हूँ तो खूबसूरत सब्जी वाला जो मुझ पर फिदा हो गया है, क्या उसकी आंखें खराब हैं? और इस तरह मेरी सोच का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे बीच में खत का सिलसिला शुरू हो गया। मैं खत में उससे सिर्फ यही पूछा करती कि मैं तुम्हें कैसे पसंद आ गई। वे लिखता, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब तुम मुझे खिड़की से झांकते हुए देखा करती थी, मैं और अम्मा की बातें सोच सोच कर मैं परेशान रहने लगी। पठान की मोहब्बत पाकर मैं बहुत खुश रहने लगी। एक दिन एक मोहल्ले की औरत अम्मा के पास बैठी थी और वे मेरे बारे में बातें कर रही थी और मैं किचन में चाय बना रही थी। उनकी आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। खाला अम्मा से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, इसलिए कोई रिश्ता विश्ता देखा। मेरी अम्मा ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगी कि मरियम से कौन शादी करेगा, मैं उसकी शादी वादी नहीं करना चाहती। खाला ने कहा, क्यों, भला अच्छी खासी तो दिखती है, कोई भी रिश्ता मिल सकता है। खाला की ये बातें सुनते ही चाय को उबलता देखकर मेरा दिल जलने लगा। इसका मतलब अम्मा मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने दुपट्टे से अपनी आंखों से निकले आंसू साफ करने लगी। कभी कभी अम्मा की बातें मेरे दिल को चीर देती। मैं सारी रात अम्मा की बातों पर रोती रही और सुबह उठते हुए काम कर रही थी। तभी सब्जी वाले की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इस्माइल के पास जाऊं। 2 दिन मैं नहीं गई। तीसरे दिन वे देर तक दरवाजे के सामने आवाज़ लगाता रहा। अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। वह पास आया और बोला कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ दरवाजे पर। मैंने उससे कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, अम्मा हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए कहा। उसके सामने हाथ जोड़े तो वह नाराज़ होकर कहने लगा, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। और वहाँ से मलंग बाबा को आते हुए देखकर वो ठेला चलाकर वो दूसरी गली में निकल गया। मैं अंदर आकर रोने लगी। मैं अगले दिन आटा गूंथ रही थी और मुझे इस्माइल की आवाज़ आई। मैंने झट से अपने हाथ धोए और अपने हाथों को साफ़ किया और दरवाज़ा खोला। वे मुझे सब्ज़ी के साथ खत भी दिया और वहाँ से चला गया। सारे काम करने के बाद मैं अम्मा का सोने का इंतज़ाम करने लगी। जब अम्मा सो गई तो मैंने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि अपनी माँ से बात करो, अगर मानती तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊँगा। खत का जवाब भी देना, तुम्हारा इस्माइल। मैं जवाब देने लगी कि इस्माइल, अम्मा से बात करने का क्या फ़ायदा, वे मेरी शादी ही नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा है कि भाग कर शादी करना ही आखिरी ऑप्शन है। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिखने के बाद मैंने खत छुपा दिया और सुबह होते ही मैं सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोलकर उसे खत पकड़वा दिया और दरवाज़ा बंद करके चली आई। कुछ दिन यूं ही खत का सिलसिला चलता रहा। दोनों की राय से घर से भागकर शादी करना तय हो गया। अब बस सही मौके का इंतज़ार था। उस रात मैं पूरी तैयारियां कर चुकी थी घर से भागने की। सामान तो कुछ नहीं था मेरे पास, बस मैंने कुछ कपड़े बैग में पैक कर लिए और अम्मा के सोते ही मुझे यहाँ से निकल जाना था। अम्मा देर तक कपड़े सी रही थी। जोड़ा सीने के बाद उन्होंने वे बैग में रखा और सोने के लिए चली गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में सोने लगी हैं, तो मैं आहिस्ता से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर निकाल कर ओढ़ी और चारपाई के नीचे से बैग उठाकर कंधे पर रख लिया। दबे कदमों से मैं बाहर निकली और बाहर निकलकर चप्पल पहने और छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, क्योंकि मुझे छत से छलांग मार कर जाना था, क्योंकि दरवाजे को अम्मा रात में ताला लगा कर रखती थी। मैं खामोशी से बिना आवाज़ किए छत पर पहुंची तो देखा तो इस्माइल खड़ा था। छत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, मैं आसानी से छलांग मार सकती थी। मुझे इस्माइल ने सहारा दिया और उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी वक्त ना जाने कहाँ से बाबा आ गया और मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया। जी हाँ, ये वही मलंग बाबा था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था।
मुझे पीछे खींचकर बोला, कहाँ जा रही हो लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तुम्हें उस पर तरस नहीं आएगा जो उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने चली हो। मैंने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन मैं बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से इस्माइल का। उसने इस्माइल का गिरबान पकड़ा और उसने थप्पड़ मारते हुए धक्का दिया। शक्ल ले जाओ यहाँ से अपनी, और आइंदा यहाँ पर मत आना, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही वे सब्जी वाला वहाँ से भाग गया और मलंग मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक लाया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मुझे उस मलंग के साथ देखते ही चिल्लाने लगी, ये सब क्या है? मैं बस रोती रही। मलंग मुझे घसीटता हुआ अंदर लेकर आया और धक्का देकर बोला, तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही थी, भागने वाली थी ये सब्जी वाले के साथ। ये सुनकर अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मुझे मारने लगी। मैं खामोशी से पिटती रही। कमबख्त घर से भाग रही थी। कौन करेगा तुझसे शादी? अपनी शक्ल देखी है तूने? अम्मा मुझे मारते हुए बोल रही थी। ये सुनकर मलंग दरवाजे से निकल रहा था और वापस मुड़ा और कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? अम्मा ने उसकी आवाज़ सुनते ही अपने हाथ रोक दिए और बोली, तू कर लेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूँगा इससे शादी। वह कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अम्मा बोली, ठीक है, फिर इस जुम्मे को आ जाऊँगा और इससे निकाह करके ले जाऊँगा। वह ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं बहुत रोई और चिल्लाई और बोली, अम्मा मेरी शादी ना करो। मगर अम्मा मेरी बात ना मानी और बोली, कौन सा वे मलंग तुझसे शादी करेगा? वे झूठ बोलकर यहाँ से गया है। वे तुझसे शादी करने वापस नहीं आएगा। आखिरकार जुम्मे का दिन आ गया और मुझे डर था कि कहीं वे मलंग मुझसे शादी करने ना जाए। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी घर नहीं आया तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई और शुक्र अदा किया। इस्माइल ने तो पलट कर मेरी खबर भी ना ली। उसकी झूठी मोहब्बत के दावे, और मुझे शर्म आ रही थी कि मैं उसकी बातों में क्यों आ गई। फिर अचानक दरवाज़ा खटखटाया। मैं चौंक गई। अम्मा दरवाजे पर गई तो वहाँ पर एक नौजवान खड़ा था जो 2 गवाहों और एक काजी को साथ लेकर आया था। अम्मा से कहने लगा कि मैं वही मलंग हूँ जो इस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। अब अम्मा खुश होकर उसको अंदर ले आई, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही मलंग है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने आया है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया और फिर मैं आंसू बहाते हुए ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने ले गया और बोला, अपना घूंघट उठाओ। यूं ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई। मैं वहाँ से फौरन पीछे हटी। मुझे पता चल गया था कि मेरी शक्ल एक बदसूरत जानवर जैसी थी। मेरा पति मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वह हकीकत है। जो तकलीफ़ तुम पर गुजरी है, इस तकलीफ़ से मैं भी गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, वह कैसे? वह कहने लगा, इसका जवाब तुम्हारी अम्मा के पास है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वह मुझे दोबारा मेरी अम्मा के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है। आज तो ये राज अपनी बेटी को बता दो। ये सुनते ही अम्मा रोने लगी और फिर कहना शुरू किया कि मेरी अम्मा जादू टोने पर बहुत यकीन करती थी। मैंने बचपन से ही अपनी अम्मा को जादू टोना करते हुए देखा था। वह किसी पहुँचते हुए बाबा के पास जाया करती थी। वहाँ से आकर अपने घर पर वह अमल करती। मेरे बाप किसी औरत के चक्कर में था, इस वजह से मेरी अम्मा वह अमल करती थी उस औरत पर ताकि वह औरत उनके पति को छोड़ दे। कुछ दिनों में ही अम्मा बहुत कुछ सीख गई थी। अब अम्मा आसपास की औरतों को ताबीज़ और गंडे बना कर देती, उनके लिए शैतानी अमलियात करती रहती। इसी तरह से उन्होंने इस शैतानी अमलियात को ही अपना ज़रिया बना लिया। औरतें अमल करवाती और अम्मा को पैसे देकर चली जाती। एक दिन एक औरत अम्मा के पास आई और कहा, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस शख्स के यहाँ पहली बीवी से कोई औलाद नहीं हुई तो मेरी बेटी से शादी कर रहा था। जो ही शादी के दिन करीब आए तो पता चला कि उसकी पहली बीवी उम्मीद से है। वे मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। तुम एक ऐसा अमल बताओ कि उसकी पहली बीवी मर जाए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अम्मा बोली, मैं किसी को मारने का अमल कैसे करूं? मैं तुम्हें ऐसा अमल नहीं करके दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वह औरत नहीं मानी और वह औरत गड़गड़ा कर रोने लगी और अम्मा को पैसों का लालच दिया। आखिरकार अम्मा मान गई और उसके लिए अमल करना शुरू कर दिया और फिर अम्मा के अमल से वह औरत बच्चे को जन्म देकर मर गई।
इस वाकया के काफ़ी दिन बाद एक दिन किसी बाबा से अम्मा का एक नया अमल सीख कर आई। वह अमल सीख कर अम्मा बहुत खुश थी। बाबा ने कहा था कि ये अमल बहुत भारी है, ध्यान से करना। इस अमल के करने से तुम्हारे पति को वे औरत खूबसूरत औरत की शक्ल में एक भयानक औरत दिखाई देगी और वह उससे नफरत करने लगेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। ये अमल तुम्हें 40 दिन करना होगा। ध्यान रहे, अमल उल्टा पड़ सकता है। मेरी अम्मा के साथ भी यही हुआ। वे रोज़ अब्बा के घर के जाने के बाद यह अमल करती। आग जलाकर इसमें कुछ ताबीज़ जला देती और ताबीज़ के जलने के वक्त कुछ मंत्र भी पढ़ती। एक दफ़ा अम्मा ताबीज़ जलाकर मंत्र पढ़ना भूल गई और कुछ टाइम बाद मंत्र के अल्फाज भूल गई। अम्मा मंत्र को याद करने लगी, कोशिश करती रही, बार बार वही मंत्र दोहराती रही और कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया, जिससे आग बुझ गई और मंत्र उल्टा पड़ गया। इससे अम्मा बहुत घबराहट होने लगी। अम्मा बोली, ये क्या हो गया? मैं तो रोज़ ही ये मंत्र पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया? आखिर अब क्या होगा? उसने फौरन उठकर आईने में अपनी शक्ल देखी और चैन की सांस ली। उनकी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मैं खड़ी थी। मुझे देखकर अम्मा की ज़ोर से चीख निकल गई और मैं बहुत डर के रोने लगी। अम्मा को क्या हो गया है? मेरी अम्मा रोने लगी। अम्मा समझ गई थी कि अमल उल्टा होने का असर उन पर नहीं, उनकी बेटी पर पड़ा है। तब से अब्बा भी वापस नहीं आए। उसी औरत से शादी करके उसी के साथ रहने लगे। तब से अम्मा ने जादू टोने और अमलियात से तौबा कर ली। तब से उसने सारे शीशे तोड़ दिए कि मैं खुद को न देख पाऊँ। अम्मा ने मुझ पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा तंग आ जाती तो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती, और तो और वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देती। अम्मा ने बताया था कि वे माजी में जादू टोना करती थी। एक दिन उसका असर उल्टा पड़ गया और मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने एक औरत पर गलत अमल करके उसे मार डाला। वह औरत मर गई, लेकिन उसका बच्चा बच गया। वह खुद मर गई, उसकी सज़ा मुझे मिली है। वह शर्मिंदा होकर बता रही थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरा पति बोला कि जानती हो वो औरत कौन थी जिसको तुमने मार डाला? वह मेरी माँ थी। ये सुनकर मेरी अम्मा और हैरत से देखने लगी। वह कहने लगा कि इस हमले से मेरी माँ तो मर गई और मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी हो गई, और बोला कि तुम सिर्फ अपनी माँ को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो और दूसरे लोगों को नहीं, जबकि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता हूँ। सबको मुझे देखकर नफरत होती है, लोग घिन खाते हैं। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी तरह कामकाज करने लगा। वहाँ मुझे बहुत पहुँचे हुए बाबा मिले। वे मुझे बहुत प्यार से देखते थे और वे मुझ पर दम दारूद करते और मुझ में दम किया हुआ पानी पिलाते और मुझे कई वजीफ़े बताए कि बेटा तुम ये वजीफ़ा दिन रात किया करो। तुम पर किसी औरत ने गलत अमल किया है जिससे तुम्हें नुकसान हुआ और उसकी बेटी को भी। तुम ये वजीफ़े पढ़ोगे तो उनकी बरकत से अमल का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं दिन रात वे वजीफ़े पढ़ने लगा। रोज़ बाबा का दम किया हुआ पानी पीता, हर वक्त अल्लाह को याद करता, और एक दिन मेरी अल्लाह ने मेरी सुन ली और इस अमल का असर मुझ पर ख़त्म हो चुका था। मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछता कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वे कहते कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करता उतना कम था। फिर एक दिन मैं अपने मोहल्ले में गया, सबको वाक़या सुनाया तो लोगों ने बताया कि एक औरत थी जो अमल करती थी, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया और तुमसे पूछने कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहां देखा तो तुम्हारी बेटी रोज़ सब्जी वाले से बात करती और खत लेती देती, और ये लोग घर से भागना चाहते थे। मुझे ये सब गवारा ना हुआ। अपने होते हुए मैं ये सब कैसे होने दे सकता था, इसलिए उस रात मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था और इसको भागने से रोक रहा था। उसने जब सारा किस्सा सुनाया तो मेरी अम्मा उनके पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। वह बोला, मेरी शक्ल ठीक हो गई है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को सब बताओ। ये सुनकर मैं इतना बोली कि अम्मा तुम सही कहती थी कि मेरी शक्ल वाकई में बहुत बुरी है, किसी बदसूरत जानवर जैसी है। मेरा पति मुझसे कहने लगा, तुम सबको खूबसूरत दिखाई देती हो, तुम सिर्फ अपनी माँ को बदसूरत दिखाई देती हो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उसी बाबा के पास लेकर जाऊँगा, वहाँ से तुम ठीक हो जाओगी। मैं और अम्मा बहुत गौर से उसे देख रहे थे और आज 40 दिन पूरे हो गए मुझे बाबा का दिया हुआ पानी पीते हुए और दम दारूद करते हुए। मैंने हर वजीफ़ा पढ़ा और बहुत ही रो रो कर दुआएं मांगी। वजीफ़ा पूरा हुआ तो बाबा ने बताया कि अब तुम घर जा सकती हो, इस अमल का असर ख़त्म हो जाएगा सुबह तक।
हम खुशी खुशी घर वापस आ गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गई। सुबह उठकर मैंने अपना चेहरा आईने में देखा तो एक खूबसूरत लड़की मुझे नज़र आई। मैं शीशे के बिल्कुल करीब आई और ख़ुद को गौर से देखने लगी। अब मुझे यकीन आ गया था कि ये प्यारी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मरियम। दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।